I have done Master of Pharmacy with Pharmacology branch, and right now I am preparing for Civil Services examination, and my optional subject is Geography, so that's why I will be dealing with Geography. Today I will be dealing with class 11th Physical Geography. This I am taking as a reference book, and I will be dealing with chapter 2. I am very thankful to Team DKT for starting such a new initiative, Donate Your Time. So let us start our lecture. I will be dividing the lecture into 8 parts, in which first we will be dealing with various theories, various hypotheses that will make us understand how this earth has originated, how this whole universe has originated. Then we will be dealing with formation of a star. Then we will be dealing with formation of planets. Then we will get something know about our solar system. Then we will be dealing with moon origin theory. There are 2 theories, we will be dealing with both. Then we will be dealing with evolution of earth, and then formation of lithosphere, formation of hydrosphere, and formation of atmosphere. Then finally we will be dealing with origin of life. So let us start our first topic, that is various hypotheses, various theories, in which first is nebular hypothesis. So first of all, understand there are various theories. These theories are assumptions. We are trying to know how this earth has originated, what has to be done, and what kind of phenomena has taken place. So in this, first we will deal with German philosopher Immanuel Kant. Immanuel Kant has given a theory, that is gaseous theory of Kant. Then second is nebular hypothesis of Laplace. Then planetesimal theory, and then finally there are various revisions in this theory. This is old theory. Now we accept a modern theory, that is Big Bang theory. So let us first deal with nebular hypothesis. This theory was first given by a German philosopher, Immanuel Kant. He said that firstly, there was a cloud of gases, lump of gases. It has hydrogen, helium, dust, etc. So, in nebular hypothesis, keep very simple principle in your mind, that everything, a planet, sun, is made up from nebula. And second, our stars has formed earlier than our earth. Stars formation took place approximately 5.6 billion years ago, and earth is 4.6 billion ago. So you can see that हमारे जो stars हैं वो पहले बने. So now let us understand what is nebula. ये nebula चीज क्या है? अगर हम ये समझ लिए तो हमें nebular hypothesis समझ में आ जाएगी. तो इमैनुअल कांट ने ये कहा कि देयर वाज अ लंप ऑफ गैसेस. वो पहले बहुत ही कोल्ड था, बहुत ही कूल था, बहुत ही ठंडा था, एंड देन उसमें क्या हुआ कि कोलिजन हुआ, अट्रैक्शन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, कोलिजन, फ्रिक्शन टुक प्लेस, एंड वो क्या हुआ, धीरे धीरे हीट अप होना शुरू हो गया. जब वो धीरे धीरे हीट अप हो रहा था तो वो उसी समय बहुत ही तेजी से रोटेट भी कर रहा था, एंड ड्यू टू दिस रोटेशन एक फिनोमेना होता है. उसमें क्या होता है, जो भी लाइटर पार्टिकल्स थे वो सेंटर में कलेक्ट हो गए, वो सेंटर में कंसंट्रेटेड हो गए, ठीक है, और जो हैवियर पार्टिकल थे वो बाहर की ओर मूव करने लगे. सो अगर मैं अगर मैं इसको पिक्चर फॉर्म में आपको दिखाना चाहूँ तो ये है. ये मान लीजिए आप गैसेस लंप है, ये रोटेट कर रहा होगा बहुत ही तेज स्पीड से, और जो
लाइटर पार्टिकल्स होंगे वो कुछ ऐसे सेंट्रलाइज हो होंगे, यहाँ पे कंसंट्रेटेड हो होंगे, और जो हेवियर पार्टिकल्स हैं वो बाहर की ओर मूव करेंगे। अब समझिए, ये जो लाइटर पार्टिकल्स था ये ही हमारा क्या है, बिगेस्ट स्टार दैट इज सन। यस, एंड ये जो छोटे छोटे ये जो हेवियर पार्टिकल्स हैं ये क्या किए, पहले एक क्लम्प ऑफ गैसेस के फॉर्म में आए, फिर उसके बाद ये क्या किए, एक रोटेटिंग डिस्क का स्ट्रक्चर लिए, और देन इसमें एक्रीशन की प्रोसेस होती है, एंड देन ये फाइनली क्या बन जाता है, प्लैनेट बन जाता है। ओके, सो क्या हुआ है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि एक क्लम्प ऑफ गैसेस है, ठीक है, वो पहले बहुत कूल था, धीरे धीरे वो रोटेट कर रहा था, रोटेशन के कारण क्या हुआ, उसमें कोलिशन हुआ, ग्रेविटेशन फोर्स के कारण कोलिशन, फ्रिक्शन, उसके बाद उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जो हमारे लाइटर पार्टिकल थे वो सेंटर में कंसंट्रेट हो जाते हैं, सेंटर में आ जाते हैं, और उसके बाद जो हैवियर पार्टिकल्स थे वो क्या होता है, वो बाहर की ओर मूव करने लगते हैं। जैसे ही ये बाहर की ओर मूव करने लगते हैं वो एक क्लम्प ऑफ गैसेस का फॉर्म ले लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसमें एक्रीशन की प्रोसेस होती है। एक्रीशन की प्रोसेस बेसिकली क्या होती है, लेयरिंग की प्रोसेस होती है, ठीक है। हमें पता है ना कि हमारे प्लैनेट्स या हमारा जो अर्थ है, ठीक है, वो भी एक क्या है, लेयर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, वेरियस लेयर्स आते हैं, फिर वो फाइनली क्या हो जाते हैं, प्लैनेट का फॉर्म ले लेते हैं। और ये जो कंसंट्रेट हुआ था बीच का पार्टिकल, इसको आज हम देखते हैं एज अ सन के फॉर्म में। बट कीप इन माइंड, अगर इसके बाद भी कोई थ्योरी आई है ना, जैसे कि लाप्लास ने इसे रिवाइज किया, ठीक है, चैम्बरलेन ने इसे रिवाइज किया, मोल्टर ने इसे रिवाइज किया, तो कुछ ना कुछ तो इस थ्योरी में कमी नहीं होंगी, इसकी थ्योरी की कुछ तो लिमिटेशन नहीं होंगी। तो लेट अस अंडरस्टैंड दैट लिमिटेशंस आल्सो। सो लाप्लास की जो गैसेस थ्योरी थी उसकी लिमिटेशन क्या है, पहले तो ये बता नहीं पाए कि ये जो पहला ये कूल स्ट्रक्चर था ये अचानक से इतना हॉट या वार्म कैसे हो गया। क्या मेयरली फ्रिक्शन या कोलिशन ही ऐसा रीजन था कि वो इतना ज्यादा हॉट या वार्म हो गया कि इसके जो पार्टिकल्स थे वो डेंसिटी के अकॉर्डिंग, वो अपने साइज के अकॉर्डिंग, अपने वेट के अकॉर्डिंग अलग अलग हो गए। दूसरा, ये 9 प्लैनेट्स ही क्यों बने, है ना। और तीसरा इनका ये था कि जब कोई बॉडी छोटी होती है, फिजिक्स में एक लॉ होता है कि जो बॉडी जितनी छोटी होगी वो उतनी ही तेजी से रोटेशन करेगी, ठीक है, ये इसके भी पीछे का कारण नहीं बता रहा है। तो फिर आए हमारे लाप्लास। लाप्लास ने क्या कहा, लाप्लास की थ्योरी को हम कहते हैं नेबुलर हाइपोथेसिस। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि नहीं, वो जो कूल स्ट्रक्चर था वो कूल नहीं था, वो पहले से ही वार्म था। क्वेश्चन इस पे स्टार्ट था कि भाई वो कूल क्यों था, इन्होंने अज्यूम किया नहीं वो कूल नहीं था, वो वार्म स्ट्रक्चर था, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने ये बताया कि वो वार्म स्ट्रक्चर पहले बहुत ही तेजी से रोटेट हो रहा था, रोटेट होते होते इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो अलग अलग हुए, और जब ये अलग अलग हो रहे थे तो ये रेडिएशन का फिनोमेना इसमें होता। रेडिएशन का फिनोमेना बोले तो लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है। जैसे ये लॉस ऑफ एनर्जी हुआ तो वो धीरे धीरे क्या होते गए, कूल होते गए, ठीक है। बट इनकी भी थियोरी में एक क्वेश्चन आया कि भाई वो 9 प्लैनेट्स ही क्यों बने, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं आपके चैम्बरलेन और मोल्टन। इन्होंने क्या कहा कि नहीं, ये एक बॉडी नहीं थी। अभी तक हम ये कह रहे थे ना, ये एक नेबुला था, क्लम्प ऑफ गैसेस था, उससे कंसंट्रेट होकर सन निकला, फिर जो हैवियर पार्टिकल्स थे वो जब बाहर हो गए तो उससे प्लैनेट बन गया। नहीं, इन्होंने कहा ऐसे नहीं था, एक जो था वो स्टेशनरी था बॉडी, ठीक है, और एक क्या थी, वो इसके चारों तरफ ऐसे रिवॉल्व कर रही थी, ठीक है। इसको मान लीजिए आप बॉडी 2। अब ये जब इसके तरफ चारों तरफ ऐसे 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 रिवॉल्व कर रही थी, तो जब ये इसके बहुत ही पास आ गई तो क्या हुआ, एक शिगार शेप स्ट्रक्चर बन जाता है, कुछ ऐसा, ठीक है।
और ये शिकार शेप स्ट्रक्चर जब और तेजी से रोटेट करता है तो ये छोटे 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 राउंडेड बॉडी बना लेता है और इसको हम कहते हैं प्लैनेटेसिमल्स। ठीक है, और ये प्लैनेटेसिमल्स फिर आपस में कोलाइड करके क्या बनाते हैं, प्लैनेट बनाते हैं। ठीक है, so this is all about nebular hypothesis. Let us understand Big Bang theory. This is a modern theory and अभी हम इसी को सही मानेंगे। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी में क्या है कि हम थोड़ा लार्जर पिक्चर लेंगे। अभी तक हम सिर्फ बात क्या कर रहे थे, सन कैसे आया, ये हमारा प्लैनेट कैसे बन गया। ठीक है, बट नाउ वी आर ट्राइंग टू नो हाउ दिस यूनिवर्स हैज क्रिएटेड। मतलब हम भाई अगर ये नेबुला आया तो उसके पहले भी कौन सा स्ट्रक्चर हुआ होगा। ठीक है, हम ये जानने की कोशिश की। तो इसको कौन दिया था, इसको दिया था एडवर्ड हबल ने। बेसिकली दिया गया था, इन्होंने 1920 में हमें ये समझा दिया कि भाई यूनिवर्स आपका एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है, यूनिवर्स एक्सपेंशन हो रहा है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इस थियरी को हम एक और नाम देते हैं एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। ठीक है, तो लेट अस स्टैंड व्हाट इज एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। इसमें हम क्या करेंगे, इसको वेरियस स्टेजेस के फॉर्म में समझेंगे। ठीक है, ताकि हमारे लिए ये इजी हो जाए। एंड मेरी आज सजेशन कि जब भी हम ज्योग्राफी पढ़ें तो हम उसे जो भी उसके स्टेप्स हैं हम उसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में एक रफ पेपर पे या फिर जब भी आप रिवाइज कर रहा हो तो उसे फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखेंगे तो वो इजी हो जाता है। जैसे कि ऐसा, जब आप इसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखेंगे तो वो बहुत ही इजी आपको लगेगा। सो आइए बिग बैंग थ्योरी समझते हैं। बिग बैंग थ्योरी में स्टेज 1 में क्या है, एक टाइनी स्मॉल पार्टिकल है। ठीक है, टीएस करते हैं उसको, टाइनी स्मॉल पार्टिकल है। इसका क्या है, ये पार्टिकल तो बहुत ही स्मॉल है बट इसका टेम्परेचर इनफिनाइट है, डेंसिटी इनफिनाइट है। अब ये टाइनी स्ट्रक्चर, ये टाइनी बॉडी कहां से आई, क्यों आई, कैसे आई, हमें नहीं पता। ये एक टाइनी स्ट्रक्चर था। कुछ देर बाद स्टेज 2 में क्या हुआ, एक्सप्लोजन। ठीक है, और जैसे ही ये एक्सप्लोजन होता है आपका काफी ह्यूज एक्सपेंशन होता है, आपके यूनिवर्स का एक्सपेंशन स्टार्ट हो गया है। अगर इसको हम आपको पिक्चर फॉर्म में दिखाना चाहें तो कुछ ऐसा हुआ होगा शायद। लेट जस्ट एग्जांपल, ये टाइनी स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इसमें एक्सप्लोजन हुआ और ये कुछ ऐसा 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 करके इधर एक्सपेंशन होने लगा। जब ये एक्सप्लोजन हुआ, एक्सपेंशन हुआ तो कई सारे मैटर्स, एंटी मैटर बने जो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर दिया। बट ऐसा नहीं था, इसमें कुछ स्टेबल पार्टिकल्स भी बने, दैट इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आफ्टर 3 सेकेंड, ठीक है, 3 सेकेंड के बाद क्या होता है, इसका टेम्परेचर बिलो 1 बिलियन डिग्री सेल्सियस नीचे आ जाता है। ठीक है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, अब धीरे धीरे डाउन हो रहा है। जैसे ही टेम्परेचर डाउन होता है ये प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आपस में एक एटम बनाने की कोशिश करते हैं। 300,000 ईयर्स लेटर क्या होता है कि ये और ज्यादा कूल हो जाता है। जब ये और ज्यादा कूल हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 4000 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा, अब ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन को भी कैप्चर कर सकते हैं। और आपको पता है जब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बनते हैं तो एक प्योर एटम या एक फुल फ्लेश्ड एटम भी बना सकते हैं। ठीक है, सो इस तरह से एटम बनने की शुरुआत हुई है। एक बार फिर हम इसको रिवाइज करेंगे ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। बिग बैंग थ्योरी में क्या है, सबसे पहले मैंने बताया कि एक स्मॉल टाइनी स्ट्रक्चर है, उसमें क्या हुआ, एक्सप्लोजन हुआ। एक्सप्लोजन के साथ साथ आपका एक्सपेंशन हो रहा है, विद इन 1 सेकेंड ये फिनोमेना हुआ। 3 सेकेंड बाद आपका क्या हो रहा है, 1 बिलियन डिग्री सेल्सियस तक आपका टेम्परेचर नीचे आया, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन स्टेबल पार्टिकल्स बन गए। इसके बाद कुछ 300,000 ईयर्स बाद क्या होता है कि ये
प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन को भी कैप्चर कर लेते हैं और यहाँ पे टेम्परेचर कितना है 4000 डिग्री सेल्सियस और ये एक एटम बन जाता है। फिर आपका यूनिवर्स जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है और ये ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, हीलियम होता है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट बिग बैंग थ्योरी। नाउ लेट अस मूव टूवर्ड्स स्टार फॉर्मेशन। ठीक है, स्टार फॉर्मेशन जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया, ये हुआ कब है 5.6 बिलियन ईयर अगो। स्टार फॉर्मेशन में आप एक बात ध्यान रखिए कि जब पहले यूनिवर्स बन रहा था, बहुत जब प्राइमरी स्टेट रही होगी, तो मैटर और एनर्जी वो इवनली टू डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगे या वो नहीं थे डिस्ट्रीब्यूटेड। ये आपका यूनिवर्स है और इसमें कुछ हैवी हैं पार्टिकल्स, कुछ लाइटर्स पार्टिकल हैं। ठीक है, दे आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब इस डेंसिटी डिफरेंस के कारण क्या होता है कि इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग ही रहा था। इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या होता है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बनने लगते हैं। ठीक है, क्या हो रहा है कि पहला प्राइमरी स्टेट है, इसमें डेंसिटी डिफरेंस के कारण क्या हो रहा है, एनर्जी डिफरेंस के कारण, डेंसिटी डिफरेंस के कारण क्या हो रहा है, मैटर अलग अलग एक तरह से इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है, जब ये मैटर इकट्ठे हो गए, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है, तो उसमें क्या होगा, कोलिजन होगा। ठीक है, इसमें फ्यूजन रिएक्शन होगा, वही जो हमने नेबुलर हाइपोथेसिस में पढ़ा था। जब ये कोलिजन फ्रिक्शन होता है तो क्या बन जाते हैं, छोटे 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 प्लैनेट्स और स्टार्स। बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सी का ये बेसिस है। ठीक है, सो हमें पता है हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे। ऐसे ही कई सारी गैलेक्सी हैं। ठीक है, जैसे एंड्रोमेडा, सजिटेरियस। ठीक है, अब ये जो गैलेक्सीज हैं, ठीक है, इनके अंदर क्या होते हैं, सन होता है, प्लैनेट होते हैं, एस्ट्रॉयड होते हैं। ठीक है, सो हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे। उसका स्ट्रक्चर क्या है, स्पाइरल शेप। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स। फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट में क्या है, हमें पता है कि एक स्टार था, ये नेबुला है पूरा। ठीक है, इसके बीच में एक स्टार है। ठीक है, इस स्टार के बीच में एक कोर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जैसे ही ये कोर का फॉर्मेशन होता है, वैसे ही क्या होता है, इसके चारों तरफ छोटे 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 रोटेटिंग डिस्क टाइप स्ट्रक्चर बन जाते हैं। ठीक है, इस कोर के चारों ओर क्या हो रहा है, ये रोटेटिंग डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बन रहे हैं। ये रोटेटिंग डिस्क लाइक स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इसमें आपस में कोलिजन होता है। ठीक है, ये आपस में फ्रिक्शन करते हैं और इसके बाद ये क्या बना लेते हैं, कोहेशन के कारण छोटे छोटे राउंडेड ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, जिसको कि हम प्लैनेटेसिमल्स कहते हैं। ठीक है, प्लैनेटेसिमल्स क्या होता है, प्लैनेट से छोटा स्ट्रक्चर जो होगा उसको हम कहते हैं प्लैनेटेसिमल्स। ठीक है, ये प्लैनेटेसिमल्स एक फाइनल स्टेज में क्या होगा, कोहेशन करने के बाद एक फुल फ्लेश्ड प्लैनेट का फॉर्म ले लेगा। ठीक है, इसी तरह से आपके क्या बने हैं, 9 प्लैनेट बने हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट में क्या होता है, हमें पता है कि स्टार्स जो हैं वो क्या है, लोकलाइज्ड लंप ऑफ गैसेस है। ये स्टार हमारा क्या है, ये नेबुला के अंदर था, इसको हम बोलते हैं लोकलाइज्ड लंप ऑफ गैसेस। ये लोकलाइज्ड लंप ऑफ गैसेस में एक कोर का फॉर्मेशन होता है और इस कोर के चारों ओर ऐसी छोटी छोटी बॉडी जो है वो एक सर्कुलर डिस्क के फॉर्म में तेजी से रोटेट कर रही हैं। जब ये रोटेट कर रही हैं तो इसमें कोलिजन होगा, फ्रिक्शन होगा। ये कोलिजन और फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, छोटी राउंडेड बॉडी बनती है जिसको कि हम प्लैनेटेसिमल्स बोलते हैं। ये जब आपस में कोलाइड कर जाएंगे तो एक फुल फ्लेश्ड
प्लैनेट को फॉर्म देते हैं। तो अभी तक हमने क्या समझा, वेरियस हाइपोथेसिस समझी, जिसमें कि हमने गैस थ्योरी ऑफ कांट समझा, फिर उसके बाद हमने नेबुलर हाइपोथेसिस समझा, फिर क्या कहना था भाई चैम्बरलेन और मोल्टन का, हमने ये भी समझ लिया, फिर हमने बिग बैंग थ्योरी समझी, फिर हमने फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सीज समझा। एक चीज इसमें छूट गई है, दैट इज लाइट ईयर। लिसन, लाइट ईयर क्या होता है, ये एक डिस्टेंस नापने का तरीका है। कीप इन माइंड, ये डिस्टेंस नापने का तरीका है, ना कि टाइम को नापने का। कैसे डिस्टेंस नापने हैं कि एक साल में, 1 ईयर में लाइट कितना ज्यादा ट्रैवल कर सकती है, कितनी दूर तक ट्रैवल कर सकती है, उसको बोलते हैं 1 लाइट ईयर। ठीक है, फिर उसके बाद हमने समझा कि भाई प्लैनेट क्या होते हैं, और अब हम समझने जा रहे हैं कि आपके सोलर सिस्टम में क्या क्या है। सोलर सिस्टम में हमें पता है पहले तो 8 प्लैनेट्स हैं। पहले क्या होते थे, 9 प्लैनेट होते थे, बट अभी क्या हो गया है, वो 8 हो गए हैं। क्यों? क्योंकि हमने नहीं, साइंटिस्ट ने क्या किया कि प्लूटो को प्लैनेट्स की डेफिनेशन से बाहर कर दिया। क्यों? क्योंकि उसका साइज उतना बड़ा नहीं है। प्लूटो इज अ ड्वार्फ प्लैनेट, ठीक है, वो छोटा है इस वजह से। ठीक है, तो अब हमें ये पता है कि भाई प्लैनेट जो है वो सारे एक साथ ही बने, ठीक है, जितने भी थे वो एक ही टाइम पे बने हैं, और वो टाइम था 4.6 बिलियन ईयर अगो का। ठीक है, अब हम जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में सन है, दैट इज आवर बिगेस्ट स्टार। हमारे पास प्लैनेट है, एस्ट्रॉइड है, और कुछ नेचुरल सैटेलाइट हैं, जैसे कि अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट क्या है, मून है। और इस समय सबसे ज्यादा सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट की बात करें तो वो किस प्लैनेट के पास है, सैटर्न के पास है। पहले जुपिटर हुआ करता था, अभी क्या है, सैटर्न है। फिर उसके बाद एक चीज हम समझेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेरेस्ट्रियल प्लैनेट एंड जोवियन प्लैनेट। देखिए हमारे पास कितने प्लैनेट है, 8 है। ठीक है, ये हमारे प्लैनेट का डिवीजन है, और ये बीच में जो मैंने दिखाया है वो क्या है, एक एस्टेरॉइड बेल्ट है। ठीक है, अब आपके ये वाले जो प्लैनेट है, यहाँ पे सन है, और ये जुपिटर से पहले यानी एस्टेरॉइड बेल्ट तक जो प्लैनेट है उनको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। ठीक है, और इनको हम बोलते हैं जोवियन प्लैनेट। ठीक है, क्यों इन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोला जाता है? टेरेस्ट्रियल मतलब अर्थ लाइक स्ट्रक्चर, तो ये सॉलिड स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये वाले जितने हैं वो गैसियस स्ट्रक्चर है, एंड दे आर बिग। सो ऐसा क्यों है भाई कि एक जो शुरू के 4 हैं वो हो गए टेरेस्ट्रियल, फिर ये जो बाद के एस्टेरॉइड बेल्ट के बाद के जो है वो जोवियन हो गए। क्यों? क्योंकि आप ध्यान दीजिए कि ये सन के बहुत ज्यादा पास हैं। ठीक है, जब ये सन के पास होंगे तो इनके एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेस होंगी वो सोलर विंड के कारण यहाँ टिक नहीं पाएंगी। ठीक है, सोलर विंड के कारण वो क्या होगी, एटमॉस्फेयर जो है वो धीरे धीरे एस्केप करने लगेगा, तो एक सॉलिड स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, जबकि ये अगर आप जुपिटर देखें, सैटर्न देखें, यूरेनस देखें तो ये काफी दूर है। ठीक है, तो सन का इतना इफेक्ट इसके पास नहीं है। ये क्या है, छोटे स्ट्रक्चर है, सॉलिड स्ट्रक्चर है, ये गैस स्ट्रक्चर है। अगर आप चाहें कि जैसे आप मून पे लैंडिंग करने वाले थे, हमारा चंद्रयान मिशन जो है, जो कि पार्शियल सक्सेसफुल रहा, उसमें क्या हुआ था कि हमने क्या किया था, एक सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश की थी। बेसिकली हमने लैंडिंग करने की कोशिश की थी, तो अर्थ पे भी हम आराम से खड़े हो सकते हैं। ठीक है, मार्स पे इतने सारे एक्सप्लोरेशन चल रहे हैं। ठीक है, तो लैंडिंग होती है। ठीक है, हमें पता है वहां पे मार्स को एक आते हैं। ठीक है, बट जुपिटर पे ऐसा नहीं, जुपिटर पे आप लैंड नहीं कर सकते हो क्योंकि वो क्या है, गैसेस स्ट्रक्चर है। ठीक है, सो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट क्या होते हैं, बिटवीन सन एंड एस्टेरॉइड के बाद का प्लैनेट है। ये हमारे सन से बड़े ही क्लोज विसिनिटी में है, ये 2 की विसिनिटी में है। आई थिंक कि आपको अब टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और जोवियन प्लैनेट के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हमारा मून कैसे ओरिजिनेट
ये आपके चंदा मामा के पीछे की कहानी क्या है, ये कैसे आ गया पिक्चर में, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ मून, इसकी दो थ्योरीज हैं। पहला जो है वो डार्विन ने दी है, दूसरी हमारी है बिग स्प्लैट थियरी। डार्विन ये कहते हैं कि भाई एक डंबल शेप का स्ट्रक्चर था, ठीक है। कुछ देर बाद क्या हुआ, ये सेपरेट हो गया। जब ये सेपरेट हुआ तो ये दो बॉडीज बन गई, ठीक है। अब इसमें एक जो है वो अर्थ ले लीजिए, एक जो है वो मून ले लीजिए। और जब ये मान लीजिए ये मून है और जब ये सेपरेट हो रहा था ना, तो ये एक डिप्रेशन क्रिएट करके दिया, ठीक है। ये डिप्रेशन को उन्होंने अपनी इस पॉइंट को सब्सटैंशिएट करने के लिए उन्होंने ये कहा कि ये जो डिप्रेशन है ये आज का पैसिफिक ओशन में इसको हम देख सकते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या कहा इन्होंने कि एक डंबल टाइप का स्ट्रक्चर था, ठीक है। ये डंबल क्या हुआ, सेपरेट हुआ। जैसे ही सेपरेट हुआ तो जो ये पहली वाली बॉडी थी अर्थ, उस पर डिप्रेशन आया और इस डिप्रेशन को इन्होंने सपोर्ट करने के लिए ये बता दिया कि भाई ये पैसिफिक ओशन में ये डिप्रेशन देखने को मिल सकता है। बट उसके बाद जब ये थ्योरी आई बिग स्प्लैट थ्योरी, तो हम इस थ्योरी को रिजेक्ट कर देते हैं और अभी हम क्या मानते हैं, वही बिग स्प्लैट थ्योरी, ठीक। बिग स्प्लैट थ्योरी को आप जायंट इंपैक्ट भी बोलते हो। इसमें क्या होता है, इसमें हमने क्या माना, ये मान लीजिए आपकी प्यारी सी अर्थ है, अर्थ से उसके 3 गुना आकार का, ठीक है। अर्थ का जो साइज है उसका 3 टाइम्स इसका साइज था। इससे एक बॉडी आके टकराती है। जब ये बॉडी आके टकराती है इससे, तो जब भी कोई भी दो पार्टिकल्स है उसमें आपस में टक्कर हो रहा है तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स भी बनेंगे कोलिजन के कारण। जो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स बन रहे हैं, ये क्या किए, अर्थ के चारों ओर रोटेट करने लगे और जैसे ये रोटेट करने लगे फिर वही कोलिजन, ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसमें क्या हो गया, हमारा मून का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल इस थ्योरी को मानते हैं, दैट इज बिग स्प्लैट थ्योरी और जायंट इंपैक्ट थ्योरी। नाउ लेट अस स्टैंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ठीक है। जिस अर्थ में हम रहते हैं, ठीक है, जहां पे आजकल थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही है, वो आखिर आई कैसे थी, ठीक है। तो पहले जो अर्थ थी वो एक बैरन रॉकी स्ट्रक्चर था और इसका टेम्परेचर जो है वो काफी ज्यादा था, ठीक है। पहले क्या था कि एक बैरन स्ट्रक्चर है, रॉकी स्ट्रक्चर है, टेम्परेचर एनर्जी काफी ज्यादा हाई है, ठीक है। बट वही बात है कि वो डेंसिटी डिफरेंस के कारण क्या होता है, धीरे धीरे उसकी लेयरिंग होती है। हमें पता है कि हमारी जो अर्थ है वो 4 लेयर से मिलकर बनी है ना। अगर मैं इसको इसे पिक्चर फॉर्म में समझाना चाहूँ तो हम कुछ ऐसे देखेंगे। ये क्या है, क्रस्ट है, ठीक है। फिर ये क्या है, मेंटल है, ये क्या है, आउटर कोर है, ये क्या है, हमारा इनर कोर है। तो ये चीज ध्यान दीजिए कि क्रस्ट से लेके कोर तक या फिर आपके एटमॉस्फेयर तक, आप पूरा एटमॉस्फेयर फिर लीजिए कि आपका अर्थ है और आपके अर्थ में भी एकदम सेंटर की ओर कोर से लेके पूरा आपका एटमॉस्फेयर है, ठीक है। जो डेंसिटी है वो सेम नहीं है, डेंसिटी इज नॉट सेम, ठीक है। जैसे जैसे आप अंदर की ओर आ जाएंगे यानी कोर की ओर आ जाएंगे, आपकी डेंसिटी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, जब इसमें धीरे धीरे क्या होता है, जब इसका टेम्परेचर कम होता है, एनर्जी कम होती है, तो क्या बनता है, आपका क्रस्ट बन जाता है। और अभी हमने बिग स्प्लैट थ्योरी में ये भी समझा कि एक 3 टाइम्स साइज की बॉडी जो है वो इससे आके टकराई थी, उसके कारण भी इसका जो टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज होगा, एनर्जी जो होगी वो इंक्रीज होगी, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या बन गया,
क्रस्ट बन गया या फिर आपका लिथोस्फीयर बन गया। आपको पता है, फिर से एक बार समझ लीजिए कि क्रस्ट है, मेंटल है, आउटर कोर है, इनर कोर है। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे डेंसिटी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। उसके बाद अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मीजोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है, एक्सोस्फेयर है। यहाँ भी जो डेंसिटी होगी, जैसे जैसे आप अर्थ के ऊपर चले जाएंगे, ठीक है, डेंसिटी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, ये याद है, यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर होता है वो रेरिफाइड एटमॉस्फेयर है। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए, पहले आपकी अर्थ क्या थी, एक बैरन रॉकी स्ट्रक्चर था। धीरे धीरे क्या हुआ, उसमें टेम्परेचर काफी ज्यादा था, एनर्जी काफी ज्यादा थी, धीरे धीरे वो कूल होता है। वो डेंसिटी डिफरेंस के कारण जो है वो पार्टिकल्स की लेयरिंग होती है, जिसको कि हम एक्रेशन प्रोसेस भी कहते हैं। अब हम कोर से लेकर मेंटल तक की अगर कहानी समझे, क्रस्ट की कहानी समझे, क्रस्ट से जैसे जैसे हम अंदर आएंगे कोर की ओर तो डेंसिटी बढ़ती जाती है। इसी तरह जो एटमॉस्फेयर की लेयरिंग हुई है, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, मेसोस्फेयर वगैरह की, उसमें भी हम क्या समझते हैं कि डेंसिटी का डिफरेंस है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे डेंसिटी कम होती जाएगी। उसके बाद क्या हुआ है कि आपका जो मटेरियल थे इसके अंदर जो है वो डेंसिटी के कारण अलग अलग हुए। उसके कारण जो जाइंट इम्पैक्ट हुआ, जो मून का फॉर्मेशन हुआ, उसके कारण भी इसका जो टेम्परेचर था वो काफी बढ़ा। फिर धीरे धीरे जब ये कूल होती गई तो आपका लिथोस्फीयर का फॉर्मेशन हो गया। अब हम समझते हैं कि ये एटमॉस्फेयर कैसे बना। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस है, कुछ 21 to 22% ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, एटमॉस्फेयर, अब ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब कहां से आए, कैसे आए, तो ये 3 स्टेजेस में है। ठीक है, जिसमें कि पहली स्टेज क्या है, लॉस ऑफ प्रीमॉर्डियल एटमॉस्फेयर। ठीक है, प्रीमॉर्डियल का मतलब क्या होता है, प्रोटोटाइप, जो पहला एकदम आपका शुरुआत का जो एटमॉस्फेयर था ना, वो क्या है, वो लॉस हो गया। सेकेंड जो प्रोसेस है वो डीगैसिंग की प्रोसेस है। एंड एट लास्ट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, लॉस ऑफ प्रीमॉर्डियल में क्या हो रहा है, आपका सुपरनोवा एक्सप्लोजन जब हुआ था, यानी भाई हमने नेबुला वाला एक्सप्लोजन समझा था, उसमें आपने देखा था ना कि जो गैसेस हैं वो बाहर की ओर मूव कर रही थी। कुछ गैसेस यहाँ पे कंसंट्रेट हो गई थी, कुछ गैसेस जो है वो बाहर की ओर मूव कर रही थी। तो इसी को हम बोलते हैं लॉस ऑफ प्रीमॉर्डियल एटमॉस्फेयर। उसके बाद क्या होता है, सेकेंड स्टेज में क्या होता है, डीगैसिंग होती है। डीगैसिंग में क्या होता है, आपका अर्थ है, आपको पता है इसमें वोल्केनिज्म की एक फिनोमेना होती है। वोल्केनिज्म की फिनोमेना सीधी सीधी फिनोमेना क्या है कि नीचे से जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, ठीक है, जो एक्सेसिव एनर्जी है वो आपके कोर से बाहर आती है। ठीक है, जब ये कोर से एनर्जी बाहर आएगी तो साथ में काफी सारी गैसेस भी आएंगी, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि अमोनिया, जैसे कि मीथेन, और कुछ फ्री ऑक्सीजन भी थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फ्री ऑक्सीजन थी इसमें। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ डीगैसिंग। अब जब ये वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है तो ये टेम्परेचर इंक्रीज होगा, गैसेस आएंगी, फिर उसके थोड़ी देर बाद क्या होता है, टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू होता है। जैसे ही ये टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है, ये आपके इसके साथ जो गैसेस में ये जो वाटर वेपर थी, ये वाटर वेपर अब कंडेंस होंगी। जब ये कंडेंस होगी तो क्या होगी, रेन। जैसे कि अभी मानसून का टाइम है, वैसे वहां भी क्या हुआ था, कंडेंसेशन के कारण जब ये टेम्परेचर धीरे धीरे कम हुआ तो वहां भी क्या हुआ था, रेन की प्रोसेस हुई। जब एक्सेसिव रेन की प्रोसेस हो गई तो CO2 क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो आपके ओशन में डिसॉल्व होने लगी। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस समझ में आया। सो अभी तक हमने क्या समझा कि 2 प्रोसेस समझी, 2 स्टेजेस समझी। पहला लॉस ऑफ
प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर, सेकेंड डीगैसिंग। प्लीज कीप इन माइंड कि जो डीगैसिंग है उसी की वजह से जो आज हमारा एटमॉस्फेयर बना है वो इस डीगैसिंग फिनोमेना के ही कारण बना हुआ है। सो डीगैसिंग फिनोमेना में क्या हो रहा था कि जो वॉल्केनिक इरप्शन के कारण, ठीक है, वॉल्केनिज्म के कारण जो आपकी एक्सेसिव एनर्जी थी वो बाहर की ओर या कि आपके क्रस्ट से होती हुई, आपके पोर से जो एनर्जी है वो आपके मेंटल से होती हुई आपके क्रस्ट की लेयर तक बाहर की ओर आती है। इस प्रोसेस में क्या है, कई सारी गैसेस जो है वो बाहर आई, जैसे कि अमोनिया, जैसे कि मीथेन, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि फ्री ऑक्सीजन, ठीक है। सो इस पूरी प्रोसेस के दौरान क्या हुआ, वाटर वेपर्स भी आई होंगी, ठीक है। अब वाटर वेपर के कारण क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोस्फीयर। वाटर वेपर जब आपके अर्थ का टेम्परेचर डिक्रीज होने लगा तो ये वाटर वेपर कंडेंस होके रेन फॉर्म की, और जब ये रेन फॉर्म होने लगी तो ये रेन जो कि अर्थ में हमारे डिप्रेशन पाया जा रहा था उसमें जो है ये रेन वाटर आके इकट्ठा होने लगा। इस तरह से क्या हुआ, हमारा ओशन का फॉर्मेशन हो गया। ये ओशन के फॉर्मेशन के साथ और ये रेन के साथ जो CO2 थी, जो कार्बन डाइऑक्साइड थी आपकी, वो जो है वो ओशन में डिसॉल्व होने लगी। अब आप इस समय एक चीज अच्छे से समझ रहे होंगे कि ह्यूमिडिटी के कारण आपका फर्स्ट लाइफ फॉर्म आया, दैट इज यूनिसेलुलर था, जो कि बैक्टीरिया था, ठीक है। और इसने कौन सी प्रोसेस की, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की। ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, ये जो प्रोसेस हुई, इसके कारण इस यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर में जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस थी उसके कारण आपके ओशन में ऑक्सीजन आए, ठीक है। और जब आपका ओशन जो है वो पूरी तरह से ऑक्सीजन से सैचुरेट हो गया, ठीक है, ये यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर था, इसने फोटोसिंथेसिस की और फोटोसिंथेसिस के दौरान जो भी ऑक्सीजन निकली, जो भी ऑक्सीजन हमें मिली वो ओशन में आके डिसॉल्व होने लगी। जब ये पूरा ओशन ऑक्सीजन से सैचुरेट हो गया तो ऑक्सीजन क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर में आने लगी। अब फाइनली हमें समझ में है ओरिजिन ऑफ लाइफ, जिसको कि आजकल जो साइंटिस्ट हैं वो मानते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन था जो कि हुआ था 3800 बिलियन ईयर अगो। ये प्रोसेस जो है उससे क्या होता है, हमारे आज का, पहले जो यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर था, फिर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, फिर कुछ केमिकल रिएक्शन होगा, और आज जो भी हम डाइवर्सिटी देखते हैं वो काफी ज्यादा टाइम के बाद हमें मिली है, ठीक है। उसे समझने के लिए हमें जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो कि पेज नंबर 18 पे दिया हुआ है वो हमें समझना पड़ेगा, जो कि सबसे पहले सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद प्रोटेरोजोइक एऑन में क्या हुआ। देखिए जियोलॉजिकल टाइम स्केल को हम पहले एऑन में, फिर एरा में, फिर वेरियस पीरियड में, फिर एपॉक में, फिर एजेस में, फिर उसके बाद जो भी इसमें मेजर इवेंट हुए हैं उसके अकॉर्डिंग, उसके बेसिस पे हम उसे जो है वो डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो इसे आप एक बार पढ़ेंगे, और बाकी अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहिए, सो फील फ्री टू आस्क मी, ठीक है। In case of any query, not in geography, also in history, quality, geography, science, please feel free to ask. जो ये इनिशिएटिव है इसका आप भरपूर फायदा उठाइए, and any kind of improvement, if you required any kind of improvement like in voice quality, like in video और पढ़ाने के तरीके में, so please tell me. This is all for chapter 2. We will try to meet soon. So thank you so much. We have successfully completed our chapter 2. See you soon.